creativity, and then after I'll take up and discuss yesterday's assignment. Are you ready for that? Yes, sir. Worked out something on yesterday's assignment or not? Yes, sir. That's good. That's good. So today I'm going to discuss with you creativity. So what do you know about creativity? What is your understanding about it? Can anybody tell me what the creativity is? कोई बताएगा? Hello. Any idea? I'm not seeking any expert idea from you. I'm just looking for any rough idea, layman idea from you about creativity. Something different, something new. Something new. In innovation also you said something new. In creativity also you are saying something new. So do same thing but in different manner. Creativity. So do same thing but in different manner. Okay, do same thing in a different manner. Do something valuable. Well, got your point. Is there any idea about which domain is more, which domain provides you more liberty to be creative, science or art? कौन सा डोमेन आपको क्रिएटिव होने के लिए ज्यादा लिबर्टी देता है? इज इट साइंस और इज इट आर्ट? So it is art. Sir, art, sir. आर्ट कैसे? सर उसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आइडियाज को, किस तरीके से न्यू वेज में हमें वर्क करना है या जो भी हमारा है जो हमें करना है. बट साइंस में अगर हमें एक फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं तो हमको वही फार्मूला ही अप्लाई करना होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो वहाँ पे सर थोड़ा सा रिजिडिटी होती है. I think the science and technology restricts you more in comparison to that of art or social sciences, right? In art, you get the most liberty to be creative in comparison to that of social science or pure science. So that's for sure. So that means you can just regard this particular term, creativity, towards the arts domain, right? Artistic, aesthetics side. आप इसको उस तरफ regard कर सकते हो इस particular term को. चलिए तो ये आपके सामने है creative board. Now you can see the people, creative people on the creative board. किस तरह से आप देख रहे हो कि वो कैसे नई नई चीजें सोच सकते हैं, क्या कितना वो सिस्टमैटिक हो सकते हैं या कितना ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं. लाइक दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन ऑफिस where several creative people are there having discussion on a project which may be pertaining to the creativity, or they are trying to be more creative. Now let's read a quotation by our former president APJ Abdul Kalam Sahab. What he says, what he thinks about creativity. Someone read little louder. So slide is not showing. Slide is not showing. Oh. Let me check. I shared. So now visible. Visible. Yes. Okay. Okay. अभी दिखाई देती है नहीं? Yes, sir. Okay. आप चेंज हो रही?
Is it changing? Hello? No, sir. No, sir. Oh, it's not changing. It's not changing. Okay, fine. Now, okay? Changing? Yes, Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक, cool. तो ये मैं बात कर रहा था कि picture of an office where some creative people are on board having some endeavors to be creative. How you can see the board or the wall of creative people. Now this is showing that how they are trying to be organized even when they are venturing for something which is not at all organized. Because when you are trying to be creative, you don't know what kind of ideas strike to your mind, what imaginations, how your imaginations work. So many things are there in your mind at a time. So you are trying to be creative, you are trying to be organized with lot many things which are actually unorganized in your mind or in front of you or in your visualizations. So this is a picture. And now let's take a quote from our former president APJ Abdul Kalam Sahab. Somebody may read it louder, please. Come on. What quotation is in front of you? Read, please. Blossoms thinking emanates. When thinking emanates, knowledge is fully lit. When knowledge is lit, economy flourishes. Now see how purposeful thinking or purposeful learning connects to creativity, how creativity connects to thinking, how thinking connects to knowledge, and how knowledge connects to economy. That means if you are creative, if you are a creative thinker, if you have creative people in your company or in your group, this will finally result into the numbers, dollars, rupees. That means this is directly going to contribute to your economy. As you may be aware of that, nowadays China is filing IPRs, patents, most in the world. That means China is more creative than maybe some other or many other countries in the world. China is more learning purposefully, becoming more creative, emanating more knowledge, and finally resulting into the economy. आज आप देख सकते हो कि किस तरह से China is threatening to so-called industrialized nations of the world. Earlier, China was also, even today, China is also counted as a third world, India, China. But this is one of the biggest threats to the industrialized nations of the Western world that comes from China itself. So that means creativity, with the help of creativity or on the silos of creativity, a country's economy can flourish. That means if a country has more creative people, country can grow more rapidly, country can grow faster. This is something which APJ Abdul Kalam ji made for. Now let's understand what the creativity is verbatim. Wiles gives the definition of creativity as it is the capability or act of conceiving something original or unusual. Pay attention on the keywords original or unusual. Now, many cartoonists you have seen make cartoon
maybe of Modi ji or maybe of Rahul ji, Sonia ji. And they are cartoon, but you can see how closely they resemble to the actual personalities. And that's their original. This is just an example of art or cartoon. But when we have some original ideas about some concepts, generally we are conditioned to see the world the way we have been told, the way we have learned from our childhood, since our childhood. हमारी अप्रोच वही होती है दुनिया को देखने की, जैसे हमने बचपन से दुनिया को देखा है, जैसे हम ट्रेन किए गए हैं। तो उस ट्रेनिंग से डिफरेंट, उस ट्रेनिंग से थोड़ा अलग हटके अगर कुछ निकल के आता है, that it strikes, that can be called original, that can be called a creative piece. जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमसे ओरिजिनलिटी के क्लॉज पे भी साइन करवाया जाता है। जो भी अच्छे जर्नल्स हैं वो इस तरीके का हमसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि दिस इज योर ओरिजिनल वर्क। इसका मतलब है कि इसमें कुछ नया है जो औरों में नहीं था। पूरा नया है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट कुछ तो नया है जो अभी तक सामने नहीं आया। दैट नोवेल्टी फैक्टर required to be there. It is the ability to generate. Second point is it is the ability to generate a thought or an idea that is completely new, appealing and useful. Third point, generating creativity means allowing people think out of the box and go against the norms sometimes. This point is very important. This is very important point. Why? Because this means the people should be encouraged to think outside the box. लेकिन पैराडॉक्स क्या है? घर में जब बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा हमें वही सोचने के लिए अलाउ करते हैं जो वो ठीक समझते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं तो टीचर हमको वही सोचने के लिए अलाउ करते हैं जो वो ठीक समझते हैं। जब हम जॉब में होते हैं तो हमारे बॉस वही अलाउ करते हैं जो वो ठीक समझते हैं। एक मैंने बहुत पहले कुछ 4-5 या 3-4 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि डू स्कूल्स किल द क्रिएटिविटी, और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। Do the schools of today kill the creativity? तो जो ढेर सारी क्रिएटिविटी, ढेर सारी एक्टिविटी और बहुत सारी चीजें क्लेम करते हैं बच्चों के लिए, उसमें बहुत ही लॉजिकली कहा गया था they are not actually making the kids creative, rather than they do everything to kill the creativity. तो घर में, फैमिली में हम सब जाने अनजाने अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को किल करते हैं। उस बच्चे ने कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कुछ कर दिया जिससे छोटा मोटा नुकसान हो गया घर में, तो हम लोगों ने उसको 2 रखे कि क्या नुकसान करता रहता है, कुछ ना कुछ तोड़ता फोड़ता रहता है, और कुल मिला के उसको हम कंडीशन करते रहते हैं कि देखो ये सही और ये गलत, ये सही और ये गलत। और ये सही गलत जो सोशल नॉर्म्स हैं सही गलत के, वो बराबर पढ़ते रहते हैं। चाहे जिस एज पे हम हो, घर में हो तो हमें बताने वाले लोग हैं हंटर लेके खड़े, स्कूल कॉलेज में है तो लोग हंटर लेके खड़े, और हम कॉर्पोरेट में हैं, ऑफिस में तो लोग हंटर लेके खड़े। सब कोई हमें ठीक करने को खड़ा। और जब तक ये सिचुएशन है तब तक वी कैन नॉट से दैट वी रियली अलाउ पीपल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यानी हमें अपने लोगों को अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ, आप
इसको आम ना कह के इसको इमली कह सको, ऐसा। इस टेबल को जमीन पे ना रखा हुआ कह के इस टेबल को लटकते हुए कह पाने की उनको हिम्मत देना और सुन पाने की हिम्मत रखना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए। इसीलिए कहा गया है कि इनोवेशन डजंट हैपन विदाउट क्रिएटिव पीपल ऑन बोर्ड। कोई भी कंपनी जो मोस्ट क्रिएटिव कंपनी, जो मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की लिस्ट हमने कल देखी थी, सबसे ज्यादा इनोवेटिव है आपकी एप्पल, देन गूगल, जिसको अल्फाबेट भी कह सकते हैं। दोनों 20-80% का रूल फॉलो करते हैं। व्हाट इज दिस 20-80% रूल या 80-20% रूल? ये रूल ये है कि 80% टाइम उनका जो कॉर्पोरेट का है वो रूटीन काम के लिए देंगे और 20% टाइम उनका जो है वो केवल और केवल क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए रिजर्व है। This is what provisions some progressive companies like Apple, Alphabet, Google, etc. having. Mode of thinking is, I think, should be visible to you on this slide. Visible? Yes, sir. बच्चों कहीं कुछ डाउट हो, you can please interrupt me then and there. All right? I would be happy to answer. I would be happy to discuss, to take your query. Yes or no? Yes, sir. Fantastic. So now see, mode of thinking. Two major modes of thinking have been discussed over here: divergent thinking, convergent thinking. Many of us exactly may not be knowing about what the divergent thinking is, what the convergent thinking is, but today we can know about it, and how important it is, we can also know that here. So let's take first divergent thinking. Here you have a question, you have a problem. Suppose you have a problem or you want to go to Delhi. For an example, आपको दिल्ली जाना है. So this is a question, how to go to Delhi, how to commute from Kanpur to Delhi. आप सोच सकते हो कि हम प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, और अगर कोई रिवर का भी रूट हो सकता है तो हम उधर से भी जा सकते हैं। कैसे भी कोई ये भी सोच सकता है कि हम कुछ पंख लगा लें और उड़ के चले जाएं, ऐसे भी कोई सोच सकता है। Like you can imagine as many ways as possible to commute from Kanpur to Delhi without thinking of how feasible those means and ways are. Feasibility part is not being conceived during the divergent thinking. ठीक वैसे ही जैसे कि चिड़ियों को देख के आदिकाल से ह्यूमन बीइंग सोचता आ रहा था कि काश हम भी उड़ पाते, काश हमारे भी पंख निकलते, विंग्स होते और हम उड़ पाते। उसने सदियों से, आदिकाल से उड़ने का सोचा। ये तब नहीं उड़ने का सोचा जब राइट ब्रदर्स ने ये बनाया प्लेन, उससे बहुत पहले, एजेस ओल्ड। इमेजिनेशंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उसने परिकल्पनाओं में वो उड़ा। सो दिस इज व्हाट उसने कहा, ये चिड़िया उड़ती है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता, मैं भी उड़ूं, मैं कैसे उड़ सकता हूं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं कि कानपुर से दिल्ली
जाना है तो हम 10 तरीकों से जाने का प्लान कर सकते हैं. But during the convergent thinking stage, you have to be bothered about feasibility of those ways. जो आइडियाज आपने जनरेट किए, जैसे आपने आइडिया जनरेट किया, एक आइडिया है कि प्लेन से चले जाओ दिल्ली, ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की स्टेज में हुआ. लेकिन अब कन्वर्जेंट थिंकिंग की स्टेज में आपको आंसर चाहिए. वहां आपको सैकड़ों आंसर मिल रहे थे, पर कंक्रीट आंसर नहीं, आंसर मिल रहे थे. एक सवाल था, एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी, उसके सैकड़ों आंसर मिल रहे थे, 10 20 सैकड़ों, as many as possible. बट वहां पे आप फिजिबिलिटी पे बोधर्ड नहीं थे. लेकिन ड्यूरिंग द कन्वर्जेंट थिंकिंग स्टेज you evaluate those alternatives with the data, information, facts. अब जैसे आपने वहां पे सोचा कि प्लेन से चले जाऊंगा दिल्ली, फिर आप सोचते हो, कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप सोचते हो प्लेन का मतलब कि पहले मैं लखनऊ जाऊं, लखनऊ से प्लेन, उसके पहले मैं 2 घंटे पहले चेक इन करूं एयरपोर्ट पे, यानी 2 घंटे का वो टाइम वेस्ट, 2 घंटे लखनऊ जाने का टाइम वेस्ट, 4 घंटे ये हो गए, और लखनऊ तक जाने का किराया भाड़ा, कन्वेंस. फिर आप बैठोगे प्लेन में, तो वो टाइम उसका वेटिंग टाइम, और फिर बैठ गए, वो आधे घंटे लिया उसने, सपोज 3 घंटे लिया उसने. देन फिर एयरपोर्ट पे आप वहां उतरे, एयरपोर्ट से आपको कहाँ जाना है, न्यू दिल्ली में, वो टाइम, वो कम्यूट करने का वो वैल्यू, प्राइस, कॉस्ट, तो सब कुछ जोड़ के आप सोच पाते हो कि साहब ये तो 10,000 रुपए हमारा खर्चा हो गया, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, और टाइम हमें लग गया 8 घंटे. बजाय इसके हम सुबह की कोई गाड़ी पकड़ लेंगे, 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे और 1,000-1,200 रुपए में पहुंच जाएंगे. तो आपको आंसर मिला कि नहीं साहब, हमें प्लेन से नहीं जाना है, ट्रेन इज फिजिबल, साइकिल से भी नहीं जा सकते, पैदल भी नहीं जा सकते. वो सब आपने फैक्ट, डेटा, इंफॉर्मेशन की हेल्प से इवेल्युएट करके एक आंसर ले लिया. This is what you do during the convergent thinking mode. So convergent thinking mode is quick to give you solution. One solution, one feasible solution. Whereas divergent thinking mode keeps you in imaginations and keeps you imaginating hundreds of solutions to a problem, but not a concrete one. That concrete one solution can be drawn during the convergent thinking level. So this is what the divergent thinking versus convergent thinking. When we say out of the box thinking, we use both. Creative people on board do both, and this both comprise together design thinking. किसी को भी हम, जैसे ये जो convergent thinking वाले लोग होते हैं, they are more traditional. अगर हम पर्सनैलिटी की बात, वो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों से आगे बढ़ना चाहते हैं. डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर पर्सनैलिटी की बात करो तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले वो लोग होते हैं जो ज्यादा क्रिएटिव है, जो ज्यादा इनोवेटिव है, जो एक्सट्रोवर्ट है. तो इंट्रोवर्ट अगर कोई है, कोई ट्रेडिशनल विचारधारा का आदमी है, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा. और अगर यंग है, ओपन आइडियाज वाला है, ओपन माइंडेड है, एक्सट्रोवर्ट है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा. तो न्यू आइडियाज आपको ज्यादातर यंग, जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनसे मिलेंगे. जो ट्रेडिशनल लोग हैं, थोड़े एज में मैच्योर हैं, उनके साथ आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग का फैक्टर ज्यादा मिलेगा. तो ये पर्सनैलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है. दोनों को हमें अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि एक समय हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कर लें और दूसरे मोड में हम आके कन्वर्जेंट थिंकिंग कर लें. दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रेन आवर
mind into both these skills, divergent thinking and convergent thinking. ये जरा इस स्लाइड को पढ़ लीजिए आप. टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कितनी तरीके की हैं? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, लेटरल थिंकिंग, एस्थेटिक थिंकिंग, सिस्टम्स थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग. पढ़िए जरा इनको. Are you there? Yes, sir. Yes, Go sir. too fast. Divergent thinking, it is a thought process or method used to generate creative ideas by exploring many possible solutions of a problem. यहाँ देख लो, यही है ना? Divergent thinking uses imagination, while convergent thinking uses logic. वो लॉजिक के साथ उसमें आंसर आता. Lateral thinking, Exploring new Thinking. ideas. thinking out of the box, right? Aesthetic thinking, एस्थेटिक, जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई पोइट है, कोई पेंटर है, राइट? कोई आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्चर बना रहा है. ये सब एस्थेटिक से रिलेटेड जो थिंकिंग है, वो उसको हम एस्थेटिक थिंकिंग कहते हैं, जो स्पेशली नॉन टेक्निकल डोमेन्स में ज्यादा है. उन ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड चीजों को जब हम देखते हैं, ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज के आर्टिस्टिक होने पे हम बात करते हैं, कोई अच्छी कविता, अच्छा राइट अप, अच्छी पेंटिंग, अच्छी डिजाइन, तो हम उस समय एस्थेटिक थिंकर होते हैं. नेक्स्ट. रीड प्लीज. हेलो. Yes, sir. Systems read. thinking. Identifying an interrelation between things and views them from a 360-degree perspective. 360 डिग्री पर्सपेक्टिव. आजकल सिस्टम थिंकिंग की बहुत बात होती है कि यही नहीं, जैसे घोड़ा देख रहा है, उसके आंख में कुछ लगा दिया गया है, अब उसको सीधे एक ही दिशा में, एक ही सामने बस देखना है. हम वो घोड़ा नहीं हो सकते हैं, हमें 360 डिग्री व्यूज लेना पड़ेगा. और एचआर वाले लोग तो जानते हैं, आजकल तो 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल होने लगा है. कितने लोग एचआर के हैं आपके साथ? सब मी, विभा. हाँ विभा, तो आपने तो पढ़ा होगा 720 डिग्री. नो सर, 360 पढ़ा है. हाँ, आजकल तो 720 की बात हो रही है, बट एनीवेज 360 डिग्री तो पढ़ा है ना. तो यस सर. हाँ, तो मतलब पूरा सर्किल कंप्लीट करना, कोई भी चीज आपके तरफ छूटनी नहीं चाहिए, आपकी नजरों से बचनी नहीं चाहिए. तो ऐसी थिंकिंग सिस्टम्स थिंकिंग कहलाती है. नेक्स्ट. Abstract thinking. Thinking about objects, principles and ideas that may not be physically present. एब्स्ट्रैक्ट, वो उनका टेंजिबल वर्ड से लेना देना नहीं है. वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग से जो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स या तमाम ऐसी चीजें जो जैसे वो कभी कोई कल्पना में कविता लिख जाता है, तो उस तरीके की चीजें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है. नेक्स्ट. Design thinking, applying strategy, problem solving and design making. Decision making to the process of design. राइट. तो डिजाइन थिंकिंग का डिजाइन से पर्टिकुलरली कोई लेना देना नहीं है. आप ये कहो कि किसी डिजाइन के बारे में सोचना डिजाइन थिंकिंग है, इट्स नॉट एक्चुअली. इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक which is based on 360 degree approach, which is based on the divergent and convergent thinking. That is what the decision making process basically based on this approach, that is called design thinking. अभी जरा creative thinking की importance पे हम नजर डाल लें. Now what is the importance of creative thinking? Creative thinking is indispensable.
आज हम सब, आज दुनिया भर के कॉर्पोरेट हों या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक अपनी यूनिवर्सिटी हो या कोई स्कूल हो, हेल्थ सेंटर हो, हर कुछ के लिए हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके, फ्यूल को लेके हो, कि भाई जो भी हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम यूज करें, जो हमारा रहन सहन हो, लिविंग हो, वो सब सस्टेनेबल हो। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग टू चेंज। हमें आज के या पुराने तौर तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को बदलना होगा, नए तरीकों को एडॉप्ट करना होगा, एम्ब्रेस करना होगा। इसीलिए तो कहा जाता है चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड। यही अटल सत्य है कि परिवर्तन होना। आज हम हैं यहाँ तो कल कोई और है, कि परसों कोई और है, और ऐसे ही जनरेशंस कीप ऑन चेंजिंग। अब ये चेंज का एजेंट कौन बनेगा? Who will bring in the change? ये चेंज एजेंट बनते हैं those who are creative people। बहुत कम संख्या में लोग क्रिएटिव होते हैं। जैसे आपने वो तो पढ़ा ही होगा, एडॉप्शन साइकिल, रोजर्स की इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल पढ़ा है? आपको याद है? मैनेजमेंट वाले हो आप। रोजर्स इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल। कॉन्सेप्ट से बहुत वीक हैं आप लोग, मुझे तो ऐसा लगता है। कोई बताएगा? रोजर्स इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल। सर क्या वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन था क्या? हाँ, वही बताओ। वो अर्ली अडॉप्टर्स वाला था, लेगार्ड्स थे, जिसमें 5 कैटेगरीज थी। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकना। तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल बताओ। सर उसमें वही था कि जैसे जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं और उन्हें मतलब इनोवेटर माना जाता है, और एक उसमें लेगार्ड्स। नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। इनोवेटर्स पहले, इनोवेटर सबसे पहले सर इनोवेटर्स आएंगे, फिर अर्ली एडॉप्टर्स आएंगे, फिर लेट एडॉप्टर्स आएंगे, फिर लेगार्ड्स आएंगे। लेट एडॉप्टर्स नहीं, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ सर, जो याद है वो। इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, फिर अर्ली मेजॉरिटी, फिर लेट मेजॉरिटी, और फिर लेगार्ड्स। ठीक है सर। ठीक है ना? तो कितने लोग इनोवेटर्स होते हैं? 2.5%। 2.5% लोग इनोवेटर्स होते हैं। मात्र 2.5% लोग जो उस इनोवेशन को सबसे पहले लेते हैं। फिर 13.5% होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, 13.5%। फिर 32% अर्ली मेजॉरिटी, 32% लेट मेजॉरिटी, और बाद में 16% आपका लेगार्ड्स। तो कुल मिला के 2.5% लोग वो हैं जो इनोवेशंस को सबसे पहले लेते हैं। तो वो क्रिएटिव माइंडसेट के लोग होते हैं जो इनोवेशंस को वैल्यू करते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि there are very few people who become change agent to implement the change, to carry the flag of change। वो indispensable होते हैं, और दुनिया में बदलाव लाने वाले वो क्रिएटिव लोग indispensable होते हैं। ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है। It is indispensable if you really want to change, if you really want to implement new things, if you really want to go sustainable।
दिस क्रिएटिव थिंकिंग गिव्स यू फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ ट्रेडिशनल थिंग्स, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज. ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये आपको जो ट्रेडिशनल नॉलेज, बाउंड्री ऑफ नॉलेज है, उसको तोड़ के आगे बढ़ाती है. इसलिए कहते हैं कि दिस गिव्स यू फ्रीडम, improves the problem solving process. Obviously अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो जो पुराने सॉल्यूशंस हैं उन्हीं में आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे. वंस यू आर क्रिएटिव तो आप वो सॉल्यूशन देखेंगे, आप नए सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपका सॉल्यूशन स्पेस बिगर हो जाएगा. दिस क्रिएटिव थिंकिंग एड्स टू लीडरशिप क्वालिटीज. ऑब्वियसली अगर आप क्रिएटिव हैं, आपने कुछ नया आइडिया दे दिया, तो आपका बॉस भी आपको कहेगा कि नहीं, ही हैज द पॉइंट, और आपकी बात सुनेगा. और आप और कुछ आपने थोड़ा मुजाहरा कर दिया अपनी क्रिएटिविटी का, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना देगा, वो आपको लीडर बना देगा. जो उनको नहीं बनाएगा जिनके दिमाग नहीं चलता. कहते हैं इसका दिमाग चलता. दिमाग चलता का मतलब होता है कि यू कम अप विद सेवरल न्यू सॉल्यूशंस, मोर सॉल्यूशंस. तो ये कॉन्फिडेंस आप में आता है. अगर आपने कुछ नया बताया, कुछ नया खोजा, कुछ नया आइडिया लाया, तो ये आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा, लीड देगा और उसे बूस्ट प्रोडक्टिविटी. बट ऑब्वियस है कि जब कुछ नई चीजें हैं तो नया बनता है तो प्रोडक्टिविटी होती है. मेक्स पीपल हैप्पियर. ऑब्वियसली कोई भी इनोवेशन, कोई भी क्रिएटिव चीज वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही बनती है. दैट मीन्स इट मेक्स पीपल happier, leads to personal growth. Obviously organization, अगर आपका organization grow करेगा, you will naturally grow. How to enhance your creative thinking? अब सवाल उठता है कि बहुत बढ़िया है क्रिएटिव थिंकिंग, बड़ा अच्छा है, उसमें लीडरशिप भी मिल जाती है, उसमें आपको वैल्यू भी मिल जाती है, आप लोगों को भी खुश कर लेते हो, आप अमीर भी बन सकते हो, आप ग्रो भी कर सकते हो. पर सवाल उठता है कि कैसे क्रिएटिव बने, क्या करें जो हम क्रिएटिव हो जाए. अगर हमें लगता है हम क्रिएटिव नहीं है या है तो और ज्यादा क्रिएटिव हो जाए. जरा पढ़ डालिए इनको केयरफुली. Have you gone through? Yes, sir. अब जरा ईमानदारी से जरा अपने को इवेल्युएट करिए, कितने पॉइंट्स में आप हैं, इनमें से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें आप समझते हो कि ये चीज आपके अंदर है, या ऐसा आप कर पाते हैं, करते हैं. इवेल्युएट योरसेल्फ.
सर बताना है आपको? हाँ हाँ बताओ मुझे। सर मेरे हिसाब से, मेरे लिए, फॉर मी इट्स 4 or 5. 4 to 5। यस ओके सर। सौरभ जी, गुड। और लोग बताएं जरा मुझे, 2-4 लोग और बताएं। 4-5 सौरभ जी ने बताया, किसी का इससे ज्यादा फिगर है स्कोर? किसी का स्कोर इससे ज्यादा है? सर अराउंड 4 to 5 मेरा भी है। ओके 4 to 5, चलो बढ़िया, सो गुड। 4 to 5 है, ठीक है। और आप आगे आगे जो बच रहे हैं आपसे, उनके बारे में आपका क्या मानना है सौरभ जी? यस सर। हाँ, हमने कहा जो क्वालिटीज या जो चीजें बच रही हैं, उनके बारे में आपका क्या मानना है? वो इनकलकेट की जा सकती हैं आपके अंदर कि नहीं? सर इनकलकेट की जा सकती हैं, बट माइट बी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या किसी और एक्टिविटीज में इंडल्ज होने की वजह से वो शायद उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लाइक जैसे यदि पे अटेंशन टू योर स्ट्रेंथ्स एंड लिव देम, तो स्ट्रेंथ्स मालूम है, लेकिन हर बार उस चीज को वैसे फुल उसमें लेके आ पाना और उनके साथ जीना, वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कई बार नहीं हो पाती है, या कई बार मालूम ही नहीं होता है कि ये भी मेरा स्ट्रेंथ का The most important, tap into your inner child and explore the qualities of purity. ये this is the most toughest one. सौरभ जी जो आप मुझे जरा लगता है कि शायद कैमरा हम लोग अगर चाह कर भी इस चीज को नहीं कर पाते। सौरभ कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ। यस सर। तो सर, ये वाला जो चाइल्ड है वो हाँ, अपने हाँ। अंदर उसको ये जो आप लाइट नहीं कर पाते। प्योरिटी वाला ये प्योरिटी वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये हम लोग चाह कर भी शायद नहीं ला पा रहे हैं कहीं ना कहीं, कि चाहे वो वर्किंग कल्चर की वजह से हो जाए या अपने जो एनवायरनमेंट है हमारे पास उसकी वजह से हो जाए। ये चाहते हम सब हैं कि हमारे अंदर हम लोग प्योर रहे, ये चाइल्डिश नेचर हमारे अंदर एक जीवित बना रहे, लेकिन सर मतलब प्रैक्टिकल फ्रैंकली ये नहीं हो पाता है। चाइल्ड की एक बहुत बड़ी मेरिट ये होती है, जैसे आप में से कई लोग फादर होंगे, तो वो बहुत सवाल करता है, बहुत इंक्यूजिटिव होता है ऑल द टाइम, और बस यही उसकी वजह होती है कि वो बहुत तेजी से सीखता है। तो ये एक अलग से भी उसकी ये मेरिट है जो हमने मेंशन भी की है, इंक्यूजिटिवनेस। लेकिन दूसरा जो क्यूरियसिटी, जो चाइल्ड की सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से वो सवाल करता है, वो है क्यूरियसिटी। और क्यूरियसिटी इज मदर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसलिए अपने अंदर इस चाइल्ड को जीवित करना बेहद जरूरी है। हो सकता है हम जिस वर्किंग सेटअप में जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां उस तरीके का, सबसे बड़ी जो भी मैंने आपसे बोला था कि हम ज्यादातर तो इसको किल करने के लिए ही हमने सेटअप बना के रखा हुआ है कि क्रिएटिविटी किल हो, उसको फ्लरिश नहीं करने देते हैं। वो जो लोगों के अपने डॉगमास हैं, लोगों के अपने जो ईगोज हैं और बिलीव्स हैं, वो बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं जिनकी वजह से ये चीजें किल होती हैं, फ्लरिश नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, वो इकोसिस्टम की बात है, वो इकोसिस्टम हमें डेवलप करने की जरूरत है अपने 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 आसपास, अपने वर्क प्लेस पे, जहां पे ऐसे लोग फ्लरिश हो सकें, ऐसे क्रिएटिविटी कल्चर को वहां पे एस्टैब्लिश किया जाए, फ्लरिश किया जाए, लोगों में को ट्रेन किया जाए क्रिएटिव होने के लिए, जिससे चीजें आगे बढ़ सके। और कोई किसी का सवाल जवाब कुछ आगे बढ़े? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Now, the dynamics of creative thinking. The dynamics of creative thinking can flow across every boundary of discipline. It is not confined to one boundary, one domain, one discipline. It is cross-discipline, interdisciplinary, multidisciplinary.
So the creative thinking, emanates from one domain to another, to another, to another. So this is what does it mean. The dynamics of creative thinking can flow across every boundary of discipline, time, and culture. These dynamics have profound implications for all organizations, including schools, that want to promote creativity and innovation. कहीं पे भी किसी भी डोमेन को, आर्ट को साइंस से जोड़ सकते हो, साइंस से सोशल साइंस को जोड़ सकते हो, फार्मेसी वाले को इंजीनियरिंग की हेल्प चाहिए हो सकती है, उसको मैनेजमेंट वालों की हेल्प चाहिए हो सकती है कुछ नई चीज को बनाने के लिए। बहुत बार हमारे दिमाग में कुछ आइडिया है कुछ बढ़िया बनाने का, लेकिन हम कहते हैं साहब हम तो मैनेजमेंट वाले हैं, आइडिया है पर ये होगा कैसे? अगर उसमें आपको जरूरत है किसी कंप्यूटर वाले की तो आप उससे बात कर लें, अगर उसमें आपको जरूरत है किसी फार्मेसी वाले की तो आप उससे बात कर लें, लाइफ वाले की तो उससे बात कर लें। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिंगल डोमेन से सॉल्व ही नहीं हो सकती। जैसे डीएनए की स्टडी 20 साल 50 साल से चली आ रही है, बहुत बाद में डीएनए को स्टडी करने के लिए रियलाइज किया गया कि इसमें केमिस्ट्री भी लगेगी, इसमें बायोलॉजी भी लगेगी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी लगेगी, इसमें वायरोलॉजी भी लगेगी, तो बहुत सारी डिसिप्लिन्स लगेंगे, तब हम डीएनए को समझ पाएंगे, एक्चुअली डीएनए डिकोड कर पाएंगे। ये समझ हमें बिल्डअप करनी चाहिए और हमें वो कोलैबोरेशंस करने चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक चीज मैं बस आपसे और शेयर करूंगा, उसके बाद मैं फिर उस पे क्रिएटिव थिंकिंग पे तो बात हो चुकी, कल वाले असाइनमेंट पे फिर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ और आपको शो करना चाहता हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच में वेट थोड़ा डिफरेंस, लेट मी ओपन इट अप। टैब, अच्छा टैब सिलेक्ट करना होगा, टैब वेल ये चीज मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता था, डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग में इन दोनों में डिफरेंस। ये मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एरो ओपन हो रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटीज को, ढेर सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को आप देख, कुछ शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा है। नो सर, अभी मेरे भी नहीं हो रहा सर। मयंक आप रिज्वाइन कर लीजिए। अभी हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, दिख रहा है दिख रहा है सर, विजिबल है सर, कंप्लीटली दिख रहा है। ओके ओके, अभी दिख रहा है? दिख रहा है? नो सर। सर अच्छा। विजिबल है, कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ को नहीं। मे भी नेटवर्क इश्यू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो डिजाइन प्रोसेस है, डिजाइन थिंकिंग है, वो दोनों को मिला के हो रही है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग के दौरान आपने जो बहुत सारी चीजें सोची, उनको आप कन्वर्जेंट थिंकिंग के दौरान
अलाइन करते हुए, कन्वर्ज करते हुए एक नतीजे पे पहुंच रहे हो। तो ये पिक्चर यहाँ पे आपको दिखा रही है कि हाउ यू हैव टू यूज बोथ द मोड्स ऑफ थिंकिंग, डाइवर्जेंट एज वेल एज कन्वर्जेंट थिंकिंग, टू रीच अ सब ऑप्टिमल और ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्लियर? तो ये पिक्चर है। दूसरा बात आती है कि ये जो डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्विकली पढ़ते चलिए। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एक्सप्लोर्स वेरियस आउटवर्ड डायरेक्शंस that can possibly lead to a solution, whereas convergent thinking is quite linear and inwardly centered on a strongest solution। तो आपने देखा कि यहाँ पे डायग्राम पे फिर आप आ जाओ, ये देखिए ये एक सोल्यूशन पे नहीं पहुंच रही है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये पॉसिबिलिटीज, ढेर सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस को बता रही है। सोल्यूशन पे कौन सी थिंकिंग पहुंच रही है? कन्वर्जेंट थिंकिंग पहुंच रही है। क्लियर है? तो ये इसका मतलब हुआ। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें नोवेल्टी। कन्वर्जेंट थिंकिंग में नोवेल्टी नहीं होती या कम होती है, वेयर एज डाइवर्जेंट थिंकिंग में नोवेल्टी होती है। लिमिट की अगर हम बात कर लें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग अनलिमिटेड है, उसमें बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, लिमिटलेस है, वेयर एज कन्वर्जेंट थिंकिंग कन्फाइंड है, लिमिटेड है। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी पुराना एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड है। सर्टेनिटी की बात करें तो हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक सर्टेन सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, वेयर एज कन्वर्जेंट थिंकिंग में नहीं पहुंच पाते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग एफिशिएंट कम है, कन्वर्जेंट थिंकिंग ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें हम क्विकली सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। पर्सनैलिटी की हम बात आपसे कर चुके हैं। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, ओपन माइंडेड है, दे आर मोर डाइवर्जेंट थिंकर, वेयर एज जो ट्रेडिशनल लोग हैं और थोड़े एल्डरली काइंड ऑफ हैं, इंट्रोवर्ट हैं, दे आर मोर ऑफ कन्वर्जेंट थिंकर। इमोशनल स्टेट में आप देख लें, वैल्यू ऑफ आंसर्स, इंट्रिकेसी, रिस्क टेकिंग, ये सब चीजें, क्यूरियोसिटी, ब्रेन एक्टिविटी, ये सब मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो जरा जब आप इस राइटअप को पढ़ेंगे तो थोड़ा और आपको क्लैरिटी रहेगी डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग की। क्लियर टू यू? चलिए, तो ये तो रहा क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। अब हम लोग कल के लेक्चर पे बात कर लेते हैं। कल हमने आपको कुछ काम दिया था, कुछ असाइनमेंट था हमारा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सस्टेनिंग जो इनोवेशंस था, राइट, उसमें एप्पल को डाला गया था। एप्पल को क्यों सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनोवेशन में रखा गया है? क्या मैं वो पिक्चर फिर से निकालूं, दिखाऊं एक बार? वेट, कोई जवाब दे जो मेरा सवाल है। Because Apple is continuously working on upgrading their softwares. Like सबसे पहले तो आया था iPhone 3G, फिर 3G प्लस आया, iPhone 4 आया, सबसे iPhone आ रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा हुआ था इनिशियल फेज 2007 में कि एप्पल की जो सेल थी वो बहुत डाउन हो रही थी, क्योंकि उसमें कुछ इनोवेशंस या सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेड नहीं हो रहा था। तो आफ्टर डेट क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, सस्टेनिंग इनोवेशन के थ्रू बहुत सारे नए अपग्रेडेशंस लेकर के आए। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है iPhone 13। अच्छा अच्छा, तुरंत एक सेकंड बैठ जाओ, जा कर रहे हैं, एक सेकंड। वो जो
Thank you. Yes, please continue. सर हमारे हिसाब से एप्पल को सस्टेनिंग में इसलिए डाला गया है कि उसका जो प्रॉब्लम एरिया है वो भी वेल डिफाइंड है और डोमेन जो है वो भी वेल डिफाइंड है। मींस एप्पल जो है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही डील कर रहा है एंड जो प्रॉब्लम डेफिनेशंस है पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम के एरिया है वो भी सेम एक ही है बट उसी एरिया में वो रेगुलरली नए इनोवेशंस नए चेंजेस जो है वो लेके आ रहा है। दैट्स व्हाई एप्पल सोमनाथ जी एक्चुअली मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग थोड़ा सा इसमें रिगर लेके आएंगे और आप वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स उठाएंगे इनके और उन प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जर्नी समझेंगे। ये थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब था। हाँ जी मैं बोलो। सर एक्चुअली स्मार्ट वॉच का जो कॉन्सेप्ट था वो आईफोन का ही सबसे ज्यादा अच्छा माना गया और इनके जो काफी प्रोसेस हैं जस्ट लाइक ईसीजी जो होता है वो एप्पल वॉच ही है जो एकदम क्लियर उसमें देती है कि हाँ ये एक्चुअल है। प्लस इनका जो एयरपॉड्स का कॉन्सेप्ट था वो भी सबने कॉपी किया बाद में, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस एप्पल ने किया। हाँ, मुझे बहुत ही जनरल आंसर्स मिल रहे हैं, बहुत खास जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा आप होमवर्क करके कुछ उनके प्रोडक्ट्स को समझेंगे, जैसे ब्रेक थ्रू इनोवेशन में कौन है, डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या था, केसेस आप डिस्कस करेंगे मुझसे। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था आपसे और आप बहुत ही लेमैन मुझे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो आप, वो मैं नहीं समझता था कि आपको एक रात का मिलने के बावजूद भी आप मुझे ऐसे जनरल आंसर्स देंगे जो कोई भी बता सकता है। आप वाकई वेबसाइट्स पे गए हैं, आपने इनके प्रोडक्ट्स को कुछ खास प्रोडक्ट्स कुछ गूगल करके समझा है इनको कि अगर ब्रेक थ्रू इनोवेशन में पीएनजी रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है, ऐसा क्या है उसमें, तो ये मैं जानना चाह रहा था थोड़ा। हाँ ईशा कुछ कह रही हैं आप। सर एप्पल के लिए मैंने कुछ सर्च किया था, फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्होंने सर नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सर एप्पल। ओके एप्पल। सो फर्स्ट मैकिंटोश से उन्होंने स्टार्ट किया था। सो दैट वाज अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। नेक्स्ट दे लॉन्च्ड आईपॉड। वो टाइम पे जब सर आईपैड एक प्रोडक्ट कैटेगरी सीडीज वगैरह मार्केट में थे, उस टाइम दे बॉट आईपॉड व्हिच रिवोल्यूशनाइज्ड the whole scenario. Then they came up with iPhone, which basically took industry by storm. Then they moved forward with iPhone, iPod के बाद में they moved towards iTunes, and then so same way they launched iPad. From time to time they kept on inventing and bringing new things, new products across different product lines, be it tab, be it laptop, be it phone, be it how we experience music, be it operating system. So and the latest one is Apple Watch. Okay. well, चलिए मैं अभी आपको फिर से इस असाइनमेंट को छोड़ूंगा नहीं। चारों तरह की इनोवेशंस पे मुझे 4 वॉलंटियर चाहिए जो पीपीटी तैयार करेंगे, बेसिक इनोवेशंस, ब्रेक थ्रू इनोवेशंस, डिसरप्टिव इनोवेशंस, सस्टेनिंग इनोवेशंस। 4 प्रेजेंटेशंस, 4 से 5 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन हो जो ये रिफ्लेक्ट करे कि आपने वाकई मेहनत की है और तब ये प्रेजेंटेशन बनाया है। फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा उस पे प्रेजेंट करने के लिए, लेक्चर के दौरान ही अपनी बात रखने के लिए। तो 4 लोग, मुझे 4 वॉलंटियर चाहिए, सारे नहीं, जो अपने को ऐसा कर सकना मानते हो कि वो कर पाएंगे, वो मुझे बताएं और वो भी डिसाइड कर लें उनको किस पे प्रेजेंट करना है।
बताइए जल्दी से, फिर मैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग बचेंगे, मैं औरों को भी दूंगा कुछ ना कुछ काम। अभी ये और इजी है, इसमें आप 4 लोग वॉलंटियर कर लें और बताएं कौन टॉपिक ले रहा है। अगर 2 लोग लेना चाहें तो आई डोंट माइंड, 2 या 3 लोग होना चाहें स्टिल आई डोंट माइंड। आप ग्रुप बना के डिस्कस करके कर सकते हो, आप चूज कर लो अपना साथी, 2 लोग 3 लोग मिलके। एंड मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट वीक होगा मैं उसमें प्रेजेंटेशन दूंगा। सर हम लोग डिस्कस करके आपको मैसेज कर देंगे। श्योर, नेम। चले। So thank you very much for today. If any doubt you have, you can ask. Otherwise we can call it a day. सर आप ये बताइए, आप प्रेजेंटेशंस में किस तरीके से, क्या फॉर्मेट, मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए जैसे ब्रेक थ्रू इनोवेशंस पे आप कर रहे हो सपोज, ठीक है, तो आप कुछ एक एग्जाम्पल लीजिए ब्रेक थ्रू इनोवेशंस के और उनको आप जस्टिफाई करिए कि ये इस कंपनी की ब्रेक थ्रू इनोवेशन थी और इसका ये इम्प्लीकेशंस हुए मार्केट में, इंडस्ट्री पे, कंपनी के ऊपर। सिमिलरली डिसरप्टिव इनोवेशन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो जियो, इस तरह से कुछ डिसरप्टिव इनोवेशंस को 1, 2 या 3 जिनको आप डिस्कस कर सकें, लोगों को बता सकें कि देखो ये डिसरप्टिव इनोवेशंस हुई, इस कंपनी में हुई और इसके रिजल्ट ये है, रिजल्टेंट्स आर दीज मैनी। जिसने मार्केट को बदला, जिसने कंज्यूमर्स की हैबिट्स को बदला, जिसने इंडस्ट्री को बदला, जिसने इकोनॉमी को बदला। दिस इज हाउ आई वांट यू टू प्रेजेंट। ओके सर। क्लैरिटी हो गई सभी को? अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट है कैन आस्क। एनीवन? विभा, क्लियर टू यू विभा? यस सर। सोमनाथ? यस सर। मयंक, आपको क्लैरिटी हो गई? जी सर, थैंक यू। कोई और सवाल किसी का हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं फिर मीटिंग एंड करूं। नो सर। नो डाउट? सर डाउट तो बहुत है, लेकिन टाइम टू टाइम क्लियर होंगे वो धीरे धीरे। अभी इमीडिएट कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना एंड करता हूं। नो सर, थैंक यू। चले, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।